Hello, my dear friends. I'm Dr. Wasim I Khan, Associate Professor, Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. In today's lecture, we will discuss Section 47 and Section 48 of Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita, which is a part and parcel of chapter of arrest. अरेस्ट के ही चैप्टर के आज हम दो सेक्शन डिस्कस करने वाले हैं, सेक्शन 47 और 48 बीएनएसएस के। तो आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करिएगा और इस लेक्चर को अपने स्टूडेंट्स के अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम टॉपिक सेक्शन 47 और 48 को डिस्कस करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ अरेस्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, उसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, आपने मेरे पिछले लेक्चर में ऑलरेडी इंट्रोडक्शन देखा होगा। अब हम डायरेक्टली सेक्शन 47 की तरफ मूव करते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली सेक्शन 47 डील्स विद। पर्सन अरेस्टेड टू बी इन्फॉर्म ऑफ ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट एंड ऑफ राइट टू बेल। Section 47 of Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita prescribes that whenever the police arrest any accused person, then it shall be the duty of a police officer to inform the accused the grounds of arrest. On what basis the police arrest that particular person? It is the duty of police officer that to inform the accused that you have committed so and so offense against so and so person at so and so place. That's why we are arresting you. पुलिस को बताना पड़ेगा जब कभी भी अक्यूज्ड को अरेस्ट किया जा रहा है तो पुलिस को बताना पड़ेगा किस कारण से उसको अरेस्ट किया जा रहा है। पुलिस ये बताएगी कि भाई तूने ये ऑफेंस इस पर्सन के अगेंस्ट में किया है, ये जगह पर किया है, ये सेक्शन में किया है, इसलिए हम तुझे अरेस्ट कर रहे हैं। अगर पुलिस इंफॉर्म किए बिना, ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट कम्युनिकेट किए बिना अगर अरेस्ट करते हैं तो दैट विल बी एन इलीगल अरेस्ट, दैट अमाउंट्स टू अ वायलेशन ऑफ राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन। ये अरेस्टेड पर्सन के राइट्स का उल्लंघन माना जाएगा। तो व्हाइल अरेस्टिंग द अक्यूज्ड पर्सन इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ पुलिस ऑफिसर टू कम्युनिकेट द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट। ऑन व्हाट ग्राउंड्स द पुलिस अरेस्ट दैट अक्यूज्ड पर्सन, एज वेल एज if the offense committed by the accused is a bailable offense, then it shall be the duty of police officer to communicate the accused that you have committed a bailable offense, and if you are ready to furnish the surety, we can release you on bail. समझ रहे हो कि अगर अक्यूज्ड जिसको पुलिस अरेस्ट करने के लिए आई और जो ऑफेंस अक्यूज्ड ने किया, अगर वो ऑफेंस बेलेबल है तो अरेस्ट करते वक्त ये पुलिस की ड्यूटी है कि वो अक्यूज्ड को ये बताए कि तूने जो ऑफेंस किया है वो बेलेबल है और अगर तू बेल देने के लिए तैयार है तो हम तुझे यहीं पर बेल पर छोड़ देंगे। तो दीज आर द टू राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन मेंशन अंडर सेक्शन 47। फर्स्ट वन इज इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ पुलिस ऑफिसर टू कम्युनिकेट द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट टू द अरेस्टेड पर्सन, और इट इज द राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन to know the grounds of arrest. This is the first right of arrested person. Second one is while arresting the accused, it shall be the duty of police officer if the accused has committed a bailable offense that you are having a right to bail. पुलिस ऑफिसर को बताना पड़ेगा कि तेरा राइट है बेल, क्योंकि बेलेबल ऑफेंस में बेल इज अ राइट ऑफ accused person. So every police officer or other person arresting any person without warrant shall forthwith communicate to him full particulars of the offense for which he is arrested or other grounds for such arrest. So to communicate the grounds of arrest which we have already discussed. While arresting the accused person, it shall be the duty of police officer to communicate the full particulars of the arrest, कि क्यों अरेस्ट उसको किया जा रहा है ये कम्युनिकेट करना पड़ेगा। Where a police officer arrests without warrant any person other than a person accused of a non-bailable offense, he shall inform the person arrested that he is entitled to be released on bail and that he may arrange for sureties on his behalf. So if the accused has committed the bailable offense, then it shall be the duty of police officer to communicate the accused that you are having a right to bail. If you can manage the surety, then definitely we can release you on bail. So these are the two rights which are mentioned under section 47. Now we will move towards section 48. The title of section 48 is obligation of person making arrest to inform about the arrest to a nominated person. Section 48. देखिए, every police officer shall inform the relatives and friend about the arrest and place where the arrested person is kept. So while arresting the accused person, it shall be the duty of police officer to inform the accused that if you want to communicate about your arrest to your relative or to your friend, you can. जब पुलिस अरेस्ट कर रही है अक्यूज्ड को तो पुलिस स्टेशन में लाते बराबर
उसकी ड्यूटी है पुलिस ऑफिसर के कि वो अक्यूज्ड को ये कहे कि भाई तू अगर तेरे अरेस्ट के बारे में तेरे रिलेटिव्स को या तेरे फ्रेंड को बताना चाहता होगा तो हम उनको बता सकते हैं, तू नाम दे हम उनको बताएंगे, लाइक दैट। The police officer shall inform the arrested person of his rights under subsection 1 as soon as he is brought to the police station। ये जो राइट है कि राइट टू कम्युनिकेट द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू हिज अरेस्ट, कि पुलिस ऑफिसर की ये ड्यूटी है कि जब कभी भी अरेस्ट कर कर अक्यूज्ड को पुलिस स्टेशन लाए तो पुलिस स्टेशन में लाते बराबर ही उसको अक्यूज्ड को ये इन्फॉर्म करे कि तू तेरे अरेस्ट के बारे में अगर तेरे रिलेटिव्स को और दोस्त को बताना चाहता होगा तो हम उनको बताएंगे, ये तेरा अधिकार है, ये तेरा राइट है। An entry of fact shall be made in a book to be kept in the police station. So, whatever the information is communicated to the relative or friend, the entry of that information must be entered into the book kept in a police station। क्या अक्यूज को पुलिस बोलेगा कि तू तेरे रिलेटिव को बताना चाहता क्या, अक्यूज अपने रिलेटिव का नाम देगा, पुलिस उनको फोन करेगी रिलेटिव को कि हमने आपके भाई को, हम कहने आपके रिलेटिव को अरेस्ट किया है और ये पुलिस स्टेशन में हमने रखा है, और इसकी एंट्री वो बुक में लिखेगी कि हमने अक्यूज को बताया, अक्यूज ने इसका नाम दिया, हमने इसको फोन किया, ये एंट्री बुक में उनको लेना पड़ेगा पुलिस ऑफिसर को। मैजिस्ट्रेट शैल सेटिस्फाई हिमसेल्फ दैट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ सबसेक्शन 2 एंड सबसेक्शन 3 हैव बीन कंप्लाइड। अब देखिए, अरेस्ट हो गया, अरेस्ट करने के बाद पुलिस ने रिलेटिव को बताया, उसके अरेस्ट के बारे में उसकी एंट्री बुक में लिए, जब 24 आवर्स के अंदर मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया जाएगा अक्यूज्ड को, तब मैजिस्ट्रेट भी खुद कंफर्म करेगा कि अक्यूज्ड के रिलेटिव को उसके अरेस्ट के बारे में बताया गया है या नहीं। पुलिस को पूछेगा, वो डायरी को भी चेक कर सकता है, बुक को भी चेक कर सकता है मैजिस्ट्रेट, मतलब मैजिस्ट्रेट खुद भी कंफर्म करेगा कि अक्यूज्ड के अरेस्ट के बारे में उसके रिलेटिव को पता है भी या नहीं। तो सेक्शन 48 डील्स विद ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन मेकिंग अरेस्ट टू इन्फॉर्म अबाउट द अरेस्ट टू अ नॉमिनेटेड पर्सन। सो इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ पुलिस ऑफिसर टू कम्युनिकेट the relative of the accused person about his arrest। That is the section 48 which we have discussed। So section 47, 48 हमने डिस्कस किया। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।